Good afternoon students, welcome to today's video lecture of integrals और आज हम definite integrals as limit of a sum करेंगे और उसके टाइप के sums are given in exercise 7.8. So हमारा heading है definite integral as limit of a sum. खाली जो थियरी याद रखना है वो मैं दो बार लिख देता हूँ तो रिवीजन हो जाएगा. Suppose here f is a function from closed interval a b to r is given function. पिछले वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं, उसके डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है. And f is continuous on closed interval a b and f is differentiable on open interval a b. f is differentiable on open interval a b. फिर हमने क्या किया था? डिवाइड closed interval AB into n equal sub intervals into n equal sub intervals of length is equal to h और वो कितना था b minus a by n. Divide closed interval AB into n equal intervals each of length h is equal to b minus a by n. So that is h क्या है? b minus a upon n और as n tends to infinity 1 upon n as n tends to infinity, so therefore h is equal to b minus a by n. और फिर याद रखने का कि as n tends to infinity h इसको टेंड करना था 0. तो बाय डेफिनेशन हमने क्या, मैंने आपको याद रखने को बोला था कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx वो कितना था? लिमिट n tends to infinity b minus a upon n into sigma f of a plus ih. I takes the values from 1 to n. ये पहला फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx is equal to limit h tends to 0 b minus a by n h होता है h into sigma of f of a plus ih. I take the values from 1 to n. Okay, ये दोनों फॉर्मूलाज आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं. ओके, लर्न हो गए होंगे. अब इसी चीज को एक बार लिखें वापस. उससे अच्छा व्हाट आई विल डू इज दैट ये लिखूं मैं, उसके पहले सारे फॉर्मूलाज जो सारे बेसिक्स हमको चाहिए वो एक बार वापस रिवाइज करते हैं बिकॉज़ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले वो सिग्मा नोटेशन के प्रॉपर्टीज जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको सिखाया था. सिग्मा ऑफ xi I takes the values from 1 to n. वो क्या था? याद है आपको? I की जगह पे I is the variable of sigma. तो I की जगह पे पहले वर्ग रखने का x1, फिर सिग्मा का प्लस, फिर I की जगह पे 2 तो x2, फिर सिग्मा का प्लस, फिर I की जगह पे 3 तो x3 प्लस डॉट I का लास्ट वैल्यू है n तो xx आएगा. ये आपको पता है. फिर मैंने आपको बताया था सिग्मा ऑफ ai plus bi. I takes the values from 1 to n. हम इंडिविजुअल सिग्मा दे सकते हैं प्लस में, प्लस सिग्मा ऑफ bi. I take the values from 1 to n. मैं खाली रिजल्ट्स लिख रहा हूं, रिकॉल कर रहा हूं. I will not be explaining again. Sigma can be applied individually minus में I is from 1 to n. This I can write as, we can write as sigma of ai. I is from 1 to n minus sigma of bi. I is from 1 to n. फिर वो रिजल्ट जो थे सिग्मा 1 I is from 1 to n वो क्या था? n और सिग्मा k I is from 1 to n क्या था? kn. और तीसरा रिजल्ट जो था सिग्मा ऑफ k टाइम्स ai. और ये रिजल्ट पहले लिख देते हैं. ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट सिग्मा ऑफ k times ai. k I is from 1 to n. I is from 1 to n. k is a constant तो k बाहर निकल सकता है. k into sigma of ai. I is the values from 1 to n. Okay, और यहाँ पे लिख दो because k is a constant. k is a constant. फिर तीसरा important result, तो तीन ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो आपको याद रखना है. sigma 1 I takes the values from 1 to n is n. और फिर sigma k I takes the values from 1 to n वो क्या था? k. ओके, ये दोनों याद रखेंगे. और फिर sigma
सिग्मा इंडिविजुअली हम इनटू में नहीं लगा सकते, तो सिग्मा ऑफ AI into BI, I is from 1 to n cannot be written as sigma AI is not equal to sigma of AI into sigma of BI, ये आपको याद रखना है। और सिग्मा ऑफ AI अपॉन BI, सिग्मा ऑफ AI अपॉन BI, सिग्मा ऑफ AI अपॉन BI is not equal to sigma AI upon sigma BI, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ AI upon BI, I takes the values from 1 to n, cannot be written as sigma of AI upon sigma of BI, where I is from 1 to n, I is from 1 to n, ऐसा हम नहीं लिख सकते, ठीक है। और वो 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो मैंने बोला था आपको याद रखने को, वो था सिग्मा I, ये 1 plus 2 plus 3 till n, पहला रिजल्ट क्या था, 1 plus 2 plus 3 till n, वो क्या होता है, उसको हम लिखते हैं सिग्मा I, when I take the values from 1 to n, और वो रिजल्ट है n into n plus 1 by 2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसको सिग्मा n बोलते हैं, that's fine। फिर सेकंड रिजल्ट क्या था, सिग्मा 1 स्क्वायर, ये पहला रिजल्ट है वो है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहला जो रिजल्ट है वो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, so 1 plus 2 plus 3 till n। सेकंड रिजल्ट क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसको हम बोलते हैं सिग्मा I स्क्वायर, where I takes the values from 1 to n, और ये रिजल्ट था n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चंस में आएगा सिग्मा I स्क्वायर, I is from 1 to n, n into n plus 1, फिर 2n plus 1 upon 6, सिग्मा I is from 1 to n is n into n plus 1 by 2। और तीसरा रिजल्ट जो आपको लिखना है, ये रिजल्ट था सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, 1 क्यूब plus 2 क्यूब plus 3 क्यूब till n क्यूब, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा ऑफ I क्यूब, where I takes the values from 1 to n, और ये हो जाएगा n स्क्वायर into n plus 1 the whole square upon 4, ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। ओके डन। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद वो n टेंड्स टू इंफिनिटी वाला वो रिजल्ट भी आपको थोड़ा याद होना चाहिए कि as n टेंड्स टू इंफिनिटी, आपको क्या याद रखना है कि when n approaches a very large number, सपोज n को मैंने 1 रखा तो 1 upon n 1 आएगा, n को मैंने 10 रखा तो 1 upon n 1 upon 10 0.1 आएगा, n को मैं अगर 100 रखता हूं for n is equal to 1, for n is equal to 1 upon n कितना आता है, 1 upon 1 for n is equal to 10 1 upon n क्या आएगा, 1 upon 10 0.1, for n is equal to 100 1 upon n क्या आएगा, 1 upon 100 0.01, for n is equal to 1000 1 2 3 1 upon n 1 upon 1000 वो कितना आएगा, 0.001, for मतलब n का वैल्यू जैसे से बढ़ रहा है, बहुत बड़ा नंबर, तो 1 upon n का वैल्यू 0 के पास जा रहा है, तो वो फाइनली रिजल्ट हम लिख देंगे, और n is equal to 10,000 1 upon n क्या होता है, 1 upon 10,000 कितना है, 0.0001 and so on। तो उसका मतलब क्या है, n approaches a very large number, when n approaches a very large positive number, 1 upon n किसके पास जाएगा, 0 के पास। तो ये ऑब्जर्वेशन पर से हम क्या कह सकते हैं कि as n approaches a very large number, positive number, इसको इंफिनिटी कहते हैं, 1 upon n approaches 0 के पास जाता है। तो आपको अब से याद रखना है कि as n approaches infinity 1 upon n approaches 0, it tends to 0, as n tends to infinity 1 upon n tends to 0, 1 upon n square also tends to 0, 1 upon n cube also tends to 0, 1 upon n raised to 4 also tends to 0 and so on। तो आपको क्या रिजल्ट याद रखने हैं अब से, अब आपको ये याद रखना है लिमिट n tends to infinity 1 upon n is 0, ये याद रखना है आपको। फिर दूसरा रिजल्ट जो ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, वो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, लिमिट n tends to infinity 1 upon n square is 0, लिमिट n
tends to infinity 1 upon n cube is 0. Similarly limit n tends to infinity 1 upon n raised to 4 is 0. वो सब रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं. ओके, इजीली आपको आ जाएगा. मुझे नहीं लगता कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज दैट इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द सम्स इन द एक्सरसाइज, मैं बाहर के कुछ क्वेश्चंस करूंगा क्योंकि मुझे वीडियो में भी तो आपको कराने हैं, तो मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस करूंगा. आप एक्सरसाइज 7.8 खुद कर सकते हो, वो ज्यादा उसमें सम्स नहीं है. ओके, तो पहले जो डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम करेंगे उसमें हम सम्स करेंगे जिसमें पॉलिनोमियल से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आते हैं, मतलब x y. ओके ओके, सो लेट अस स्टार्ट. पहला सम क्वेश्चन है ऑब्टेन. हां, क्वेश्चन ऐसा होगा ऑब्टेन इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 x dx as limit of sum. ये क्वेश्चन होगा ऑब्टेन इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 x dx as limit of sum. और लिमिट ऑफ सम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बोर्ड एग्जाम्स में मैथमेटिक्स गुजरात बोर्ड और सीबीएसई स्कूल एग्जाम्स, तो उसमें सीबीएसई और गुजरात बोर्ड के एग्जाम्स में दे डोंट आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली गिवन लाइक सो प्लस माइनस को साइन में चेंज करते हैं या लिमिट चेंज कर देते हैं. सो आप पैटर्न समझो और एक्सरसाइज से क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस जो मेथड मैंने सिखाई है उससे सॉल्व कर दो. आंसर आ रहा है ऑब्टेन इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 x dx as limit of a sum. कंपेयर ऐसा लिखेंगे कंपेयरिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 x dx with integration from a to b fx dx. a कितना आता है? a is 1, b is 3, fx कितना आएगा? fx is x. therefore ये जो क्लोज्ड इंटरवल ab है, क्लोज्ड इंटरवल ab है वो कितना हो जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल 1. अब fx कैसा है? x, तो वो कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन. हियर fx is x. लिखना पड़ेगा being a polynomial function या linear function. being a linear function ऐसा लिखो कि being a algebraic function, being a linear function, being a linear function f is continuous. f is continuous on closed interval ab मतलब 1 3 and f is differentiable on open interval 1 3. फिर क्या करते थे हम लोग? डिवाइड closed interval ab, divide closed interval ab is equal to closed interval 1 3 into n equal subintervals of length कितनी रखी थी? of length is equal to h is equal to b minus a upon n. कितना आएगा? 3 minus 1 by 2 is equal to 2 by n. तो h कितना आया? h आया 2 by n. दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. ओके, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा. और हां, ये गुजरात बोर्ड में दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 3 और 4 मार्क्स एंड इन सीबीएसई स्कूल एग्जाम दिस कैन कम फॉर 4 और 6 मार्क क्वेश्चन. तो सब डिटेल में लिखना है. सो h इज 2 by n और आपको पता है as n tends to infinity h tends to 0, ये आपको लिखना पड़ेगा. अब वो जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx क्या था? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी b माइनस a by n इनटू सिग्मा ऑफ f of a plus ih. और दूसरा फार्मूला क्या था? दूसरा फार्मूला था इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx is equal to limit h tends to 0 h into sigma f of a plus ih. I is so 1 to n. f of a plus ih को ढूंढना है. here fx कितना है? fx कितना है? x. fx is x. a कितना है? 1. a is 1, b is 3. ओके, तो f of a plus i निकालो. f of a plus ih. f of a कितना है? 1 plus ih. डोंट सब्स्टिट्यूट h अभी. h को ऐसे रखो. f of 1 plus ih. f of x क्या है? f of x क्या है? x. तो f of कुछ भी इस कुछ भी, तो f of 1 plus ih क्या आएगा? 1 plus ih. तो f of a plus ih क्या आएगा? 1 plus ih. So ultimately you write that as hr. So f of a plus ih is 1 plus hr. ये याद रखना है आपको. अब by definition वो लिखो. by definition क्या था? by definition
definition integration from a to b fx dx by integration from a to b fx dx हमको जब भी अलजेब्रिक या पॉलिनोमियल फंक्शंस आएंगे जिसमें x का वो सब आता है तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h लिख दो या b माइनस a अपॉन n b माइनस a अपॉन n इनटू सिग्मा f ऑफ a plus ih I take the values from 1 to n. अब therefore integration a कितना था 1 so 1 2 3 x dx is limit n tends to infinity b minus a upon n मतलब क्या था h तो वो कितना आएगा 2 by n into sigma I take the values from 1 to n f of a plus ih कितना है 1 plus hr f of 1 plus hr समझ में आया 8 में। अब इसको आराम से कंटिन्यू करना है। अब इसका आंसर 2 या 3 स्टेप के बाद आराम से आ जाएगा। इट इज जस्ट अ पैटर्न व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। वंस यू कैच द पैटर्न दीस आर वेरी इजी टू सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इनटू 2 by n। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 by n इनटू सिग्मा I is from 1 to n और 1 plus hi इंडिविजुअल सिग्मा देखो तो सिग्मा ऑफ 1 I takes the values from 1 to n plus sigma of hi I takes the values from 1 to n, okay, which is equal to limit n tends to infinity into 2 by n into sigma 1 एक साथ में sigma देना होता है। sigma का वेरिएबल i है h is constant तो sigma 1 I takes the values from 1 to n h outside sigma I takes the values from 1 to n। now sigma 1 I is from 1 to n क्या होता है n sigma I is from 1 to n क्या होता है n into n plus 1 by 2 और h का फॉर्मूला क्या था वो सब्स्टिट्यूट कर दो। h क्या था 2 by n वो सब्स्टिट्यूट कर दो और sigma 1 sigma I सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके दिस इज टोटली अ टिपिकल काइंड ऑफ सम। इसमें इंटीग्रेशन का कुछ भी यूज नहीं है। Okay, that's why I have taken this topic in the end और इसमें मैं सारे सब्स डिफरेंट टाइप के करूंगा and I want you all to do and get the answers of the questions in the exercise. That is excellent for you. Sigma 1 I is from 1 to n क्या होता है n plus h कितना था 2 by n into sigma I is from 1 to n क्या था n into n plus 1 by 2. Okay. It is equal to limit n tends to infinity. Don't be interested में कैंसिल करो आराम से 2 by n into n कर दो मल्टीप्लाई कर दो 2 by n into n plus 2 by n okay इतना कर दिया मैं this much I have written। अब क्या करो अब क्या आपको करना है k is equal to limit n tends to infinity। okay what I will do is that I will give individual limit as well as okay कैंसिल कर लेते हैं इसको मैं अभी 2 by n ही रखता हूं और यहाँ पे n plus 2 gets cancelled n gets cancelled so I am left with n plus 1 n plus 1 तो ये हो जाएगा limit n tends to infinity okay 2 by n into अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो n plus 1 कितना आएगा n plus 1 2n plus 1 2n plus 1 okay simple है that's why I'm doing this way so limit n tends to infinity into 2 by n into कितना आएगा ये हो जाएगा 2n plus 1 into 2n plus 1 okay now you have to see the method which I have to apply। अब क्या करना है ये है 2 by n into 2n plus 1 क्या करने का limit n tends to infinity 2 by n और इसमें से ये जो ब्रैकेट है 2n plus 1 उसमें से n कॉमन निकालो so n बाहर निकला तो ये कितना हो जाएगा 2 plus 1 by n 2 plus 1 by n gets cancelled so I am left with limit n tends to infinity 2 times 2 plus 1 plus n समझ में आया कि नहीं limit n tends to infinity 2 into 2 plus 1 plus n परफेक्टली आंसर आ जाएगा। अब आपको पता है as n tends to infinity 1 upon n किसको ट्रेन करता है as
कांस्टेंट क्या होता है? लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट होता है। तो जब आप लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n क्या होता है? लिमिट अप्लाई करने के लिए ये रेडी है। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n क्या होता है? 0 एंड लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट is constant। हाँ, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट, टू कांस्टेंट है, तो लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट 2 into 2 भी कांस्टेंट है, उसका लिमिट 2 प्लस 1 अपॉन n का लिमिट क्या आएगा? लिमिट n टेंड्स टू 1 अपॉन n 0। तो आंसर इज 2 times 2 plus 0 which is 4। So 2 into 2 is 4। So ultimately integration 1 to 3 x dx, integration 1 to 3 x dx as limit of a sum is 4। इसको ऐसे नहीं करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx is x square by 2 और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्यार से ठीक 0 मिलेगा, प्यार से ठीक 0 मिलेगा। यहाँ पे आपने टेक्निक समझी कि यहाँ पे क्या था? सॉरी, यहाँ पे था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे था 2 by n into 2n plus 1। तो मैंने क्या किया, ये n कैंसिल होना चाहिए और जब भी n टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो रिजल्ट जो हमको जो अप्लाई करना है उससे 1 by n 1 upon n square 1 upon n क्यूब आना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ से n कॉमन निकाला, तो n कॉमन निकालने पर यहाँ पे क्या हो गया? 2 plus 1 by n, फिर n कैंसिल हो गया और फिर तो रिजल्ट आपको आ गया आंसर। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं है, न डिफरेंशिएशन है, इसमें आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के फॉर्मूला आने चाहिए और लिमिट के फॉर्मूलाज आने चाहिए। दैट्स व्हाई आई सेड, इसलिए ये टॉपिक मैंने सबसे एंड में लिया है। ओके, नाउ लेट मी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 3x square minus 2x 3x square, find integration 0 to 2, find integration 0 to 2 3x square minus 2x plus 4, 3x square minus 2x plus 4 dx as limit of a sum, as limit of a sum। Okay, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? of limit of a sum कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आपको पता है कंपेयरिंग इंटीग्रेशन 0 to 2 3x square minus 2x plus 4 with integration a to b fx dx we get। okay, तो वहां स्टार्ट करो comparing integration 0 to 2 3x square minus 2x plus 4 dx with integration a to b fx dx we get। a कितना है? a is 0, b is 2, fx is 3x square minus 2x plus 4। therefore closed interval ab क्या हो जाएगा? closed interval ab हो जाएगा closed interval 0 to 2। fx क्या है? फंक्शन पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक फंक्शन। so being a quadratic function, being a polynomial function, f is continuous on closed interval ab मतलब 0 to 2 and f is differentiable on open interval 0 to 2। फिर क्या लिखते थे? divide closed interval ab is equal to closed interval 0 to 2 into n equal subintervals each having length h is equal to b minus a upon n और वो वैल्यू आएगा 2 by n। ओके, into n equal subintervals of having length is equal to h is equal to b minus a upon n जो है 2 minus 0 upon n which is 2 by n। तो अल्टीमेटली h क्या है? h is 2 by n और याद रखने का as n tends to infinity h tends to 0। अब f of a plus ix निकालना है। here fx क्या है? here fx is 3x square minus 2x plus 4 और हाँ a कितना था? 0 और b था 2। अब f of a plus i जो फॉर्मूला है
f of a plus ih is f of 0 plus ih, 0 plus ih, तो f of a plus ih क्या हो जाएगा, f of ih, f of a plus ih, f of a plus ih क्या हो जाएगा, f of ih, fx क्या है, fx है 3x square, fx है 3x square minus 2x plus 4, उसका मतलब f of x, f of कुछ भी is equal to 3 times कुछ भी का स्क्वायर minus 2 times कुछ भी plus 4, तो f of ih क्या है, x की जगह पे ih रख देने का, तो therefore f of ih क्या आएगा, 3 times ih का स्क्वायर minus 2 times ih plus 4, which is therefore f of a plus ih is 3 times I square h square minus 2 ih plus 4, और हाँ सिग्मा का वेरिएबल कौन सा है, I, और कांस्टेंट कौन सा है सिग्मा के वेरिएबल में h, तो इसके लिए हमेशा याद रखने का f of a plus ih में h वाला टर्म पहले तो h square I square minus 2hi plus ये हो गया हमारा f of a plus ih, और h क्या था 2 by n and h is 2 by n, closed interval AB था closed interval 0 to 2, खाली रेफरेंस के लिए लिखा है, by definition of limit of a sum integration from a to b fx dx क्या था, limit n tends to infinity b minus a by n जो h है into sigma f of a plus ih, I takes the values from 1 to n, yes or no, yes, so therefore integration from, okay, so what I am doing now, integration from 0 to 2, fx क्या था 3x square minus 2x plus 4 dx, let me check, 3x square minus 2x plus 4 dx is equal to कितना आएगा, limit n tends to infinity b minus a upon n is h, which is 2 by n into sigma f of a plus ih, f of a plus ih is 3 h square I square, sorry 3 h square I square minus 2 hi plus 4, where I take the values from 1 to n. अब इंडिविजुअल सिग्मा देना पड़ेगा, अब इंडिविजुअल सिग्मा देना है तो what has to be done, I will tell you कि जब ऐसे सम्स करने हो और जब स्टेप्स ज्यादा हो तो एक दो चीजें we will have to do it simultaneously. अब देखो लिमिट n tends to infinity 2 by n ऐसे ही है, अब जब मैं सिग्मा देता हूं तो सिग्मा ऑफ 3h square I square, उसमें 3 कांस्टेंट और h कांस्टेंट, खाली I वेरिएबल है, तो सिग्मा ऑफ 3h square I square में से 3h square हम वहां लिख देते हैं, वो बेटर रहेगा, 3, ओके पहली बार लिख रहे हैं, so 3h square I square I takes the values from 1 to n minus sigma of 2hi I takes the values from 1 to n plus sigma of 4 I takes the values from 1 to n. ये स्टेप आपको अवॉइड करना है और डायरेक्टली देखो क्या लिखना है, लिमिट n tends to infinity 2 by n into sigma of 3h square I square, 3 और h सिग्मा का वेरिएबल I है, 3h square कांस्टेंट, so 3h square into sigma I square I takes the values from 1 to n, फिर माइनस सिग्मा ऑफ 2hi, 2h कांस्टेंट, इसलिए माइनस 2h into sigma I take the values from 1 to n plus sigma 4 कांस्टेंट, 4 बाहर into sigma 1 I take the values from 1 to n. now h क्या है 2 by n, वो सब्स्टिट्यूट करना है, h क्या है 2 by n, वो सब्स्टिट्यूट करना है, ओके कैलकुलेशंस थोड़े जल्दी हैं पर आप करोगे तो आ जाएगा, h is 2 by n, here now h is 2 by n, तो क्वेश्चन में h स्क्वायर है तो 4 upon n स्क्वायर हम देख सकते हैं, और बाकी के सारे रिजल्ट्स आपको पता है, तो वो हो जाएगा लिमिट n tends to infinity 2 by n into, ओके बड़ा सा एक ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, 3 times 2 by h square कितना है 4 by n square, 4 by n square into, और what I will do is
that the next step में what I will prefer, okay, should I supply the limit and मेरा बहुत confusion होगा, okay, which is limit n tends to infinity into 2 by n, okay. Now 3x square, so 3 into कितना आएगा, x square is 4 by n square, 4 by n square into sigma I square का फॉर्मूला क्या है, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 minus 2 into h कितना है, 2 by n into sigma I का फॉर्मूला क्या है, n into n plus 1 by 2 plus 4 into sigma 1 क्या होता है, n. ओके, अब देखो क्या करो, अब आपको इसमें कैंसलिंग और उसमें आपको नहीं जाना है, या आपको इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इनटू 2 बाय n होल इन. ठीक है, अब क्या करना है, ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 बाय n देना है और हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है. 2 मीटर से 3 और 6 कैंसिल करो. एम आई क्लियर? तो देखो मैं कैसे करूं, मैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सप्लाई कर रहा हूं इंडिविजुअली और 2 बाय n भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं. तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 बाय n मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 into 3 2 into 3 6 6 4 जा 24, या फिर ओके 2 into 3 6 6 4 जा 6 4 जा 24, n into n स्क्वायर कितना आएगा, n क्यूब, यहाँ पे एक n है into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. आप समझे मैंने क्या किया, 4 3 जा 12 upon n स्क्वायर को मैंने 2 upon n मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12 2 जा 24, n into n स्क्वायर इज n क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा. आराम से शांति से देखो, सेकंड टर्म में भी ऐसा ही करना है. लिमिट n टेंड्स n कैंसिल करने में अभी आप ज्यादा फोकस मत करो, आंसर फिर गलत आएगा. ओके, सो अब क्या आएगा, माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पे कितना था 2 2 जा 4, 4 into 2 कितना होता है 8, और नीचे n into n कितना है n स्क्वायर, 8 upon n स्क्वायर, मतलब 2 to the 4 by n into 2 by n किया 8 by n, और यहाँ पे एक और एक टर्म है n into n plus 1 by 2 plus limit n tends to infinity 2 by n into 4 by n कितना है 2 to the 4 to the 8, so 8 by n into n. ये तीसरा है, आप समझे? ओके, now see what has to be done. 6 1 का 6 4 का वो आप कर सकते हो, पर क्या करना है, यहाँ पे ये n क्यूब कैंसिल हो जाएगा. ये n क्यूब कैंसिल करने के लिए ये जो n plus 1 है उसमें से मैं एक n कॉमन निकालूंगा, और 2n plus 1 है उसमें से भी मैं एक कॉमन निकालूंगा. तो देखो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 24 upon 6 कितना है 4 upon n क्यूब इनटू ये जो n plus 1 है उसमें से एक n कॉमन निकालो, तो एक n यहां से निकालो, और 2n plus 1 में से एक n कॉमन निकालो, तो यहां से एक n निकाला और यहां से एक n निकाला, तो n into n मतलब n क्यूब हो गया, और वो ब्रैकेट n plus 1 क्या हो जाएगा 1 plus 1 by n, और 2n plus 1 में से मैंने n निकाला है तो वो हो जाएगा 2 plus 1 by n, पहला ब्रैकेट हो गया, माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 1 जा 2 4 जा, so 4 upon n square, agreed, बहुत टफ नहीं है, 4 upon n square. अब ये n plus 1 है उसमें से एक n निकालो, तो n into n कितना हो जाएगा n square, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 plus 1 by n, और यहाँ पे n कैंसिल कर दो, प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 80 तक. एम आई क्लियर? कैसे किया मैंने, ये कैसे ब्रैकेट आया आपको समझ में आया, 6 1 जा 6 4 जा 4, ये 4 आया 4 upon n क्यूब, ये रहा. अब मैंने n plus 1 में से एक n निकाला और 2n plus 1 में से एक n निकाला, तो कितना हो गया n into n कितना हो गया n क्यूब, ये लिखा n क्यूब, और n plus 1 में से n कॉमन निकाला तो 1 plus 1 by n, और 2n plus 1 में से भी मैंने n निकाला 2 plus 1 by n. समझ गए? ये ब्रैकेट में ओके, यहाँ पे n कैंसिल हो गया, तो ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 8. यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 4 जा 4 upon n स्क्वायर, ये n बाद में कैंसिल करना है, दैट इज नॉट अ बिग इशू. अब ये n है और इसमें से सो 2 1 जा 2 4 जा 4 upon n स्क्वायर लिख दिया. अब n into n plus 1 पे फोकस करो, या इस ब्रैकेट में से मैंने n निकाला n into n स्क्वायर, और n plus 1 में से n निकाला 1 plus 1 by n. ठीक है, ओके. नाउ इट इज एवरीथिंग इज रेडी. एक एक्स्ट्रा स्टेप मैं लिखूंगा, आंसर आ जाएगा. मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखूंगा, आंसर आ जाएगा. तो क्या करना है, ये हो जाएगा लिमिट n
tends to infinity, n cube gets cancelled. We are left with 4 into 1 plus 1 by n into 2 plus 1 by n. 4 into 1 plus 1 by n into 2 plus 2 by n into 2 plus 1 by n. Limit n tends to infinity into 4 into 1 plus 1 by n, okay, plus limit n tends to infinity plus limit n tends to infinity of 8 is the value. Okay. अब आपको पता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n क्या होता है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n क्या होता है? नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n 0, सो 1 अपॉन n की जगह 0 लिखने का, और लिमिट ऑफ कांस्टेंट होता है, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी k इज k. लिमिट लगा दो, सॉल्व कर दो, आ जाना चाहिए आंसर. ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन था कैलकुलेशन में, दैट्स व्हाई. So if this sum becomes limit of constant is constant, so 4, the 4 आएगा 4 into 1 plus 0 into 2 plus 0 minus 4 into ये पहला ब्रैकेट minus 4 into 1 plus 0 plus limit of constant is constant, so 8. So answer will be 4 to the 8 minus 4 plus 8. So 4 into 1 into 2 minus 4 into 1 plus 8 कितना आएगा? 8 minus 4 plus 8 plus 8 16 16 minus 4 is 12. 12 must be the answer, is equal to 12. Yes, perfect. थोड़े से ज्यादा लिखे हैं पर आंसर अच्छे तरीके से आ गया, एक भी मिस्टेक नहीं हुई और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम क्वेश्चन था 0 to 2 of 3x square minus 2x plus 4dx as limit of the sum, उसका आंसर कितना आया? 12. परफेक्ट. ओके, एक बड़ा सा सम करते हैं. ओके, नाउ लेट मी डू. टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x dx a to b, मैंने 1 2 3 कर दिया तो कोई टेंशन नहीं है आपको. फिर मैंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया है. सो नाउ टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बुक में है x square minus x dx from 1 to 4 x square minus x. तो let me do x square minus x. ओके, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं. Let I is equal to, okay, I am solving the sum so that it can help you. आपको खुद सॉल्व करने हैं, आपके आंसर आने चाहिए. प्रैक्टिस क्वेश्चन के फॉर्म में आपको लेना है एक्सरसाइज 7.8. ओके, मैं पूरा लिखूंगा, कॉपी करूंगा. Does make sense? Third question of this line. Evaluate and find integration from textbook में है x square minus x dx from 1 to 4. Okay, let me do integration. Find integration 1 to 3 x square plus x dx as limit of sum. आपको समझ में आएगा सेम टाइप. ओके, तो स्टार्ट करो. कंपेयर इंटीग्रेशन 1 to 3 x square plus x dx with integration a to b fx dx. We get, okay, direct देखो, a is 1, b is 3, fx is x square plus x. Okay, direct देखो तो भी चलेगा कि here a is 1, b is 3, fx is x square plus x. Therefore, closed interval AB becomes closed interval 1 3. अगर आपके पास फाइल नहीं है तो मत लिखना being a polynomial function fx is continuous on closed interval 1 to 3 and continuous on differentiable on open interval 1 to 3. अगर आपके पास फाइल नहीं है ये सब के लिए तो आप पहले लिखो डायरेक्टली a is 1, b is 3, fx is x square plus x, फिर सीधा x निकाल देना. ओके, being fx कितना है x square plus x, तो being a polynomial function f is continuous on closed interval 1 to 3 and f is differentiable on open interval 1 to 3. फिर divide closed interval AB, ये लिखना पड़ता है, it is a part of solution 1 3 into n sub intervals n equal sub intervals of
सब इंटरवल्स each having length is equal to h is equal to b minus a upon n, which is equal to 3 minus 1 upon n, which is 2 by h is 2 by n. एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हो हमेशा, you can go for this, h is 2 by n. okay, by मतलब डायरेक्ट कर देखो, here a is 1, b is 3, fx is x square plus h, h is here, h is b minus a upon n, which is 2 by. अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हो या स्कूल में यूनिट एग्जाम लिख रहे हो और एक क्वेश्चन है, you have only 5 minutes, तो फिर you can solve this question, but थोड़े स्टेप्स कम करने पड़ेंगे. फिर ध्यान रखिएगा, as n tends to infinity, h tends to 0 चलेगा, ये बोलो. अगर टाइम नहीं है तो ना f of a plus I is ढूंढना है. Here fx कितना है? fx is x square plus x, a is 1, b is 3. okay, a is 1, b is 3. this way मैं सॉल्व कर रहा हूं. 1 2 3 x square plus x dx. okay, f of a plus ih is f of a कितना है? 1, so 1 plus ih. okay, fx क्या है? fx is x square plus x, उसका मतलब x की जगह पे क्या लिख रहा है? 1 plus ih, तो वो सब्स्टिट्यूट कर देने का x की जगह पे fx के फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा 1 plus ih the whole square plus 1 plus ih. okay, because fx कितना है? x square plus x. आप समझे? 1 plus ih को मैंने अंडरलाइन किया है, fx क्या है? x square plus x, तो उसका मतलब f of 1 plus ih ढूंढना है, तो इस फॉर्मूला में fx इक्वल टू x square plus x में x की जगह पे ये पूरा 1 plus ih सब्स्टिट्यूट कर दो. 1 plus ih the whole square plus 1 plus ih एक्सपांड कर दो. 1 plus ih the whole square को एक्सपांड कर दो. 1 plus ना एक्सपांशन 1 plus 2 into 1 into 2 ih plus I square x square plus 1 plus ih कितना हो जाएगा? 1 plus 1 2. ओके, पहले I square h square 2 ih बना दो. 3 ih plus 1 plus 1 2. तो f of a plus ih जब भी हम लिखें तो पहले h वाला टर्म और बाद में I आना चाहिए. therefore f of a plus ih कितना आया? h square I square plus 3hi plus, और हाँ here h खाली वापस लिख रहा हूँ, h is 2 by n और क्लोज इंटरवल ab था, क्लोज इंटरवल 1 2. फिर डेफिनेशन लिखो, बाय डेफिनेशन. ओके, तो एग्जाम में आप डायरेक्टली f of a plus ih निकाल सकते हो. f of a plus ih थोड़े स्टेप्स कट डाउन करके. so f of a plus ih is x square I square plus 3hi plus 2. perfect है. now by definition of limit of sum, by definition of integration from a to b fx dx क्या था? इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx क्या था? लिमिट n tends to infinity b minus a upon n into sigma f of a plus ih. I takes the values from 1 to 10. okay, अब कैसे सॉल्व करोगे? so therefore integration from 1 to 3 fx dx is limit, साथ लिखना है therefore integration 1 to 3 fx क्या था? x square plus x dx is equal to limit n tends to infinity, h कितना है? 2 by n into sigma of f of a plus i. तो कितना है? h square I square plus 3hi plus 2, where I takes the values from 1 to 2. अब एक दो स्टेप हम स्किप करेंगे. सिग्मा ऑफ h square I square, उसमें पहले अब इसको हमको इंडिविजुअल सिग्मा we want to supply. तो सिग्मा ऑफ h square I square में h square constant, so this becomes limit n tends to infinity 2 by n into sigma h square into
sigma of I square, I takes the values from 1 to n, plus sigma of h square I square, h square constant, so h square marks into h square into sigma I square, plus sigma of 3h constant, so plus 3h into sigma I takes the values from 1 to n, plus sigma of 2 constant q outside 2 times sigma 1 I takes the values from 1 to n. ठीक है, पिछले दो क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं कंटिन्यू, ओके, तो इस बार मैंने स्किप किया ना। h कितना है 2 बाय, तो h पे कितना होगा 4 बाय n स्क्वायर। सो व्हाट आई विल डू इज दैट, अब क्या करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 बाय n सप्लाई भी करना है और वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है, या फिर अगर मिस्टेक होती है सो इट्स बेटर डायरेक्ट नहीं करना है, तो यू डू दिस वे ओनली जो हमने किया 2 बाय n इन, ओके, हां h स्क्वायर कितना आएगा 4 बाय n स्क्वायर इनटू n इन sigma I square, I is from 1 to n into n plus 1 into 2n plus 1 plus 3h मतलब 3 into 2 by n into sigma I is from 1 to n into n plus 1 n into n plus 1 by 2 plus 2 times what is sigma 1 I is from 1 to n, okay, take that. अब क्या करने का, मल्टीप्लाई लिमिट, पहले तो 2 by n है तब वो मल्टीप्लाई करो और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करो, ठीक है, आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है, दिस इज रिलेटिवली वेरी वेरी इजी, दिस इज रिलेटिवली very easy, okay, which is equal to limit n tends to infinity, अब मल्टीप्लाई कर दो 2 by n into 4 by n square, 2 4 is 8, 8 upon n cube, 8 upon n cube into n plus 1 into 2n plus 1 4 by 6, ये पहला टर्म है, ओके, प्लस लिमिट n tends to infinity, multiply कर दो 2 by n into 3 to the 6, 6 to the 12, 12 upon n square, 12 upon n square into, अब देखो मतलब इस फॉर्मूला को टच नहीं करना, n into n plus 1 into n plus 1 upon 6 कितना रहेगा, yes, हाँ, so 4 to the 8, 8 upon n cube, n into n plus 1, 2n plus 1 by 6, फिर जो सिग्मा i का फॉर्मूला है, सिग्मा i का फॉर्मूला उसको टच नहीं करेगा, n into n plus 1 by 2, फिर कितना आएगा 2 by n into 3 to the 6, so 2 3 the 6, 6 to the 12, 12 by n square into n plus 1 by 2, ये सेकंड है, प्लस लिमिट n tends to infinity, लिमिट n tends to infinity of 2 by n to the 4n upon n, 4n upon n, ओके, ना अब क्या करना है, आपको पता है, इस ब्रैकेट में से एक n निकालो, इस ब्रैकेट में से एक n निकालो, तो क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और हाँ वो कैंसिल अगर आपको करना है 6 4 और 3 से तो चलेगा, आप कैंसिल नहीं करोगे तो भी चलेगा, तो अब क्या करना है, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से एक n निकालो, यहां से एक n निकालो, यहां से एक n निकालो तो n स्क्वायर और एक n निकालो तो n क्यूब, तो यहां पे कितना बचेगा 8 upon n क्यूब into 1 plus 1 by n into 2 plus 1 by n into 1 by 6 into 1 by 6 है, n cube by 6 n cube by 6 into n cube by 6 into, पहला ब्रैकेट हो गया, प्लस कितना है, लिमिट n tends to infinity, 2 1 जा 2 6 या फिर कैंसिल कर देना है, 2 4 जा 2 3 जा 4 by 3 देना है, 4 by 3 2 3 जा 2 4 जा, तो कितना आएगा 4 upon n cube into n cube, यहाँ से एक n निकाला, यहाँ से एक n निकाला, तो n cube into 1 plus 1 by into 2 plus 1 by, सही है, फिर 2 1 जा 2 6 जा, कितना बचेगा 6 upon n square into, इस ब्रैकेट में से n plus 1 में से एक n निकाल दो, कितना बचेगा n square प्लस लिमिट n tends to infinity of 4, ये तीसरा ब्रैकेट है, ओके, नाउ सी ये सब सम्स क्या है, these are all you can say different type of sums, जितना आप टेक्स्ट बुक क्वेश्चन के आंसर खुद लाने की कोशिश करोगे that will be excellent, that's why I am doing different type of questions,
so that you will get the idea. n cube gets cancelled, n cube gets cancelled, n square gets cancelled, यहाँ पे n cancel हो गया, तो क्या बचेगा? Limit n tends to infinity 4 times 1 plus 1 by n into 2 plus 1 by n plus limit n tends to infinity into, okay, there's some mistake. I have done some mistake. Wait. So 1 to 6 upon n square, 6 upon n square into, यहाँ से क्या निकला? n square into 1 plus 1 by n, yes, plus limit n tends to infinity. Sorry, limit n tends to infinity of 4. Okay, done. Limit n tends to infinity. n square get cancelled. We are left with 6 into 1 plus 1 by n plus limit n tends to infinity of 4. Okay, perfect. Now we apply the limit. यहाँ कितना आएगा? इधर का 2 4 are 2 3 are 4 by 3 आना चाहिए. Oh my god! So it should have been 4 by 3. Should have kept it 8 only. So 2 3s are 2 4s are. तो देखो ध्यान से करोगे तभी आएगा 4 by 3. 4 by 3. So 4 upon n cube into n cube by 3. Okay. और फिर n cube is cancel. Sorry. यहाँ पे 4 by 3. 1 plus 1 by n. एक mistake आंसर गलत आएगा. That's why you need to be very careful. 4 by 3 into 1 plus 1 by n into 2 plus 1 by n. Okay. और यहाँ पे 1 का तो 6 upon n square into n square into 1 plus 1 by n. सही है? Now we apply the limit. You get the answer. हाँ, result क्या है? Limit n tends to infinity. 1 upon n क्या होता है? 0. Limit of a constant is constant. Now limit n tends to infinity. 1 upon n is 0 and limit of a constant is constant. So limit n tends to infinity is k. Limit लगा तो limit of constant 4 by 3 is 4 by 3. So answer क्या आएगा? 4 by 3 into this will be 4 by 3. Limit of a constant is constant. So limit n tends to 4 by 3 is 4 by 3 into 1 plus 0 into 2 plus 0. Okay. Plus कितना आएगा? 6 into 1 plus 0. 6 into 1 plus 0 plus limit of constant is constant. So वो 4 आएगा. Plus 4. Okay. Easy to plus 6 times plus 6 into 1 plus 0 plus 4. Okay. So 4 by 3 into 1 into 2 plus 6 into 1 plus 4. कितना आएगा? 4 by 3. 4 to 8. 8 by 3 plus 8 by 3 plus 6 plus 4 10. Okay. Finish it off. 8 by 3 plus 6 plus 4. So it is 8 by 3 plus 10. So 8 plus 10 is 30 by 3. So answer is 38 by 3. Let me check. It is 38 by 3. 38 by 3. Yes, is that? Actually, I am solving the questions which have come in previous Gujarat board exam. Okay, limit as a sum. जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं सॉल्व करूंगा. 38 by 3. So इंटीग्रेशन एक अक्टूबर एग्जाम और जुलाई एग्जाम कंपार्टमेंट एग्जाम बोलते हैं वो वाले मैं सॉल्व कर रहा हूँ. 1 to 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 x square plus x dx is 38 by 3. कभी जुलाई में एग्जाम होता है गुजरात बोर्ड में इफ यू फेल मतलब अगर वो बोर्ड में फेल होता है तो उसके बाद सीबीएसई में बोलते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम उसको री एग्जाम बोलते हैं तो वो जुलाई में होता है तो वो जो 12th के पूछे जाते हैं पहले सब वो वाले क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. ओके दिस इज डन नाउ दिस इज डन सो पार्टी 4 let's complete now. ओके तो आई बिलीव आपको limit as a sum of ये एक्सपोनेंशियल लिमिट एज अ सम ऑफ ये क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ चुके होंगे 3 में सिखा चुका हूं.
अब ट्रिगो के टेक्स्ट बुक में नहीं है, मतलब ऑब्टेन इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b sin x dx as limit of a sum और ऑब्टेन a to b cos x dx as limit of a sum, वो टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो वो दो एक्स्ट्रा हमको भी करना है और एक्सपोनेंशियल वाले बाकी हैं, मतलब जैसे कि एग्जांपल नंबर 26 e raised to x है या क्वेश्चन नंबर 5 e raised to x -1 to 1, वो एक्सपोनेंशियल वाले बाकी हैं, वो मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेट अस डू फर्स्ट वन, एक ट्रिगो का ऑब्टेन integration from a to b cos x dx as limit of a sum. Obtain integration from a to b cos x dx as limit of a sum. ठीक है, क्लियर? वो करना है इस क्वेश्चन के। कैसे स्टार्ट करेंगे? कंपेयर इंटीग्रेशन a to b fx dx with integration from a to b comparing integration cos x dx with integration a to b fx dx, we get fx कितना है? fx is cos x for which interval? For closed interval ab. cos x कैसा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और आपको पता है cos is continuous on r, तो being a trigonometric function cos x is continuous, so being a trigo function, ये सारे trigo function continuous होते हैं, being a trigo function f is continuous on closed interval ab and f is okay, ये कराने के पहले आपको रिजल्ट हमको दिखाने पड़ेंगे। Knowing more the result, so that way we will manage. लिमिट्स हम कर चुके हैं तो वो उसका यूज करना है, that's why I do it, अभी वो अलग से सिखाने की जरूरत नहीं। Being a trigger function f is continuous for closed interval ab and f is differentiable on open interval ab. Divide closed interval ab into n subintervals of equal length is equal to h is equal to b minus a upon n. तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको एक cos x या ट्रिगो के फंक्शन करने हो तो h is equal to b minus a upon n. Therefore nh कितना हो जाएगा? b minus a. Therefore b minus a is n, तो b क्या हो जाएगा? a plus nh. Therefore b minus a is nh. b minus a is okay. So therefore nh is b minus a. So b minus a is nh. तो आपको याद रखना है b is a plus nh. ये आपको याद रखना है b is a plus nh. तो थ्योरी लिख चुके हैं और फिर आपको याद रखना है as n tends to infinity h tends to 0. आपको याद रखना है as n tends to infinity h tends to 0. और अब f of a plus i h निकालना है। Here fx क्या है? Here fx is cos x. Therefore f of a plus i h क्या है? f of a plus i h, a और b का वैल्यू कुछ नहीं है, for closed interval a का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, b का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, जरूरी मैं निकाल रहा हूं। So therefore f of a plus i h क्या होगा? f of x क्या है? cos x. तो f of a plus i h क्या होगा? cos of a plus h. ठीक है, और here आपको याद रखना है here h is b minus a by n और b is a plus h. अब by definition of limit of a sum, अब याद रखो कि जब भी आपको ट्रिगो के क्वेश्चंस करने हो, इसके ट्रिगो के क्वेश्चंस करने हो, तो ट्रिगो के क्वेश्चंस मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx from a to b, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx from a to b, तो आपको क्या करना है? आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको h tends to 0 वाले लिमिट पे करना है। Algebraic में हम n tends to infinity करते थे, that's why. तो by definition of limit of a sum, integration from a to b fx dx, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लिमिट h tends to 0, लिमिट h tends to 0,
और फिर क्या लिखेंगे b minus a upon n is h into sigma f of a plus ih. I takes the values from 1 to n. ठीक है, so therefore integration from a to b, therefore integration from a to b cos x dx is equal to limit h tends to 0 h into sigma of cos of a plus ih. I take the value from 1 to n. ठीक है, ओके. नाउ सी cos और sin के दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं, but sometimes they might ask, so I am doing it. आज के वीडियो लेक्चर में I will do cos, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में sin का कवर अप करूंगा, और हाँ, और भी मैं आपको अलजेब्रिक क्वेश्चंस भी और 2-3 करके दूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए. अब which is equal to limit h tends to 0, limit h tends to 0 into h into, ये हमको सिग्मा लगाना है, सिग्मा ऑफ cos ऑफ a plus i. i की जगह पे पहले 1 रखो तो cos ऑफ क्या आएगा, i की जगह पे 1 रखने पर क्या आता है, cos ऑफ a plus 1h मतलब a plus h, फिर सिग्मा का प्लस, फिर i की जगह पे 2 cos ऑफ a plus 2h प्लस cos ऑफ i की जगह पे 3 रखो a plus 3h प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा cos ऑफ a plus n. मैंने खाली सिग्मा लगाया, i की जगह पे क्या लिखा मैंने, i की जगह पे पहले मैंने 1 रखा तो cos of a plus h, फिर सिग्मा का प्लस cos of a plus i की जगह पे 2 रखा, पहले i की जगह पे 1 रखो तो cos of a plus h, फिर सिग्मा का प्लस, फिर इस टर्म में i की जगह पे 2 रखो तो cos of a plus h, फिर सिग्मा का प्लस, फिर i की जगह पे 3, फिर कहां लग जाएगा n. ना जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब भी एक क्वेश्चन हो, आपको एक टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा. ध्यान से मैं आपको लिख रहा हूं, लिमिट h tends to 0 into h into cos of a plus h, i की जगह पे 1 लिखा, cos of a plus ih, फिर i की जगह पे 1, so cos of a plus 1h, cos of a plus सिग्मा का प्लस, फिर i की जगह पे 2 रखो, so cos of a plus 2h, फिर सिग्मा का प्लस, i की जगह पे 3, so cos of a plus 3h डॉट 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 प्लस cos of a plus nh. Okay. Now क्या कर रहे हैं, multiply and divide by 2 times sin of h by 2 which is not equal to, ये याद रखना है, multiply and divide by 2 sin of h by 2 which is not equal to 0. Okay, multiply and divide by 2 times sin of h by 2 which is not equal to 0. Okay, तो क्या करना है, 2 sin h by 2, h into 2 sin h by 2 हो जाएगा, h into ये थोड़ा अलग है, एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, cos वाला और sin वाला टफ है, इसे मैं एक सॉल्व करूंगा. सो लिमिट h tends to 0, अब देखो क्या मिलेगा, लिमिट h tends to 0 into h into 2 sin of h by 2 लिखा है, और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मैं डिवाइड कर देता हूं, h upon 2 into sin of h by 2, ये ऐसा मैंने डिवाइड किया, और ये 2 sin h by 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक टर्म के साथ. आप समझ लो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 sin h by 2. आई विल राइट दैट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आई विल राइट, तो आपको ज्यादा क्लियर आ जाएगा. इधर वही लिखना चाहिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सॉरी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड by 2 times sin of h by 2 not equal to 0. So limit h tends to 0, h into 2 sin of h by 2 है, okay, upon 2 sin of h by 2. ये स्टेप आप अवॉइड कर सकते हो एग्जाम में, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऐसा किया और एक ब्रैकेट cos of a plus x plus cos of a plus 2x plus cos of a plus 3x plus dot dot dot, okay, plus dot 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 cos of a plus nh. Okay, yes or no? Yes. अब 2 sin h by 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो हमको क्या मिलेगा, लिमिट h tends to 0 h upon 2 times sin of h by 2 into क्या करना पड़ेगा,
2 cos of a plus h into sin of h by 2 plus 2 times cos of a plus 2h, छोटे हैंडराइटिंग निकालते हैं, is equal to limit h tends to 0 h upon 2 times sin of h by 2 ब्रैकेट है in क्या है cos of just one minute ओके बड़े हैंडराइटिंग लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 sin h by 2 हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 टाइम्स क्या है 2 टाइम्स 2 into cos of a plus h into sin of h by 2 plus 2 times cos of a plus 2h into sin of h by 2 plus 2 times cos of a plus 3h into sin of h by 2 plus डॉट 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 करके तो फॉर्मूला लगा तो अब पुट्टी को भी लगाना पड़ेगा प्लस डॉट 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 प्लस क्या बचेगा 2 times cos of a plus nh into sin of h by 2 अब आपको फॉर्मूला याद है 2 cos x 2 cos alpha sin beta क्या होता है 2 cos alpha sin beta क्या होता है sin of या 2 cos a sin b क्या होता है 2 now 2 cos a sin b क्या होता है sin of a plus b minus sin of a minus b अगर ये ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं आता है तो फिर आपको ये सम आगे नहीं आएगा ओके सो this becomes our process लगा लो limit h tends to 0 h upon 2 sin h by 2 वो तो वैसे ही रहेगा और वो बाकी के जो टर्म्स हैं उससे हमको थोड़ा ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है I will use the whole word limit h tends to 0 okay here it will be limit h tends to 0 h upon 2 into sin of h by 2 bracket है okay right in okay hold 2 cos a sin b क्या है sin of a plus b तो क्या आना चाहिए sin of समझो जरा a plus h by 2 minus sin of a plus h minus h by 2 ये थोड़ी से बताओ h plus h by 2 कितना होता है a plus h by 2 a plus 3h by 2 अंडरस्टूड sin of पहला आएगा a plus h by 2 minus sin of a plus h minus h by 2 तो h plus h by 2 कितना होगा 3h by 2 h minus h by 2 कितना होगा h by 2 तो what I will write the first bracket as sin of 3h by 2 minus sin of h by 2 पहला ब्रैकेट ओके तो फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकंड ब्रैकेट करना है उसमें ओके sin of wait इसको लो something wrong है क्वेश्चन तो सही है क्या था तो मैं ए लिखा सॉरी 2 sin a 2 cos a sin of a plus b minus sin of a minus b तो cos of यहाँ पे a की जगह पे a plus h है और b की जगह पे h by 2 है तो क्या आना चाहिए sin of a plus h a plus b minus sin of a minus b तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा a plus 2h plus h 3h by 2 और यहाँ पे आएगा a plus h minus h by 2 कितना होगा h by 2 सो पहला टर्म जो होगा ब्रैकेट में वो क्या होगा a plus 3h by 2 sin of पहला टर्म आएगा sin of a plus 3h by 2 minus sin of a plus h by 2 पहला ब्रैकेट प्लस दूसरा ब्रैकेट लिखना है cos of a plus 2h into sin of h by 2 तो वो आएगा sin of a plus 2h plus h by 2 minus sin of a minus b एक जगह पे क्या है a plus 2h minus h by 2
2h plus h by 2 to the 4 4 plus 5 5h by 2. So sin of a plus 5h by 2 minus sin of a plus कितना आएगा 2 to the 4 4 minus h मतलब 3h by 2. ये हो गया मेरा सेकंड ब्रैकेट प्लस तीसरा ब्रैकेट कितना आएगा तो जरा ध्यान से करना है। हर टर्म में a plus 3h plus h by 2 है, यहाँ पे 3h हो जाएगा और यहाँ पे है 3h minus h by 2. a plus h sin of a minus b, sin of a plus b minus sin of a minus b, ये फॉर्मूला लगा है 2 cos sin b sin of a plus b minus sin of a minus b, इस पे लगाओ तो कितना आएगा sin of a plus 3h plus h by 2 minus sin of a plus 3h minus h by 2, तो कितना आ जाएगा sin of a plus 3 plus 7h by 2 minus sin of a plus 3 to the 6 minus h 5h by 2. Okay, 5h by 2 plus dot dot okay plus dot plus लास्ट में क्या बचेगा? लास्ट में बचेगा sin of a plus n, a की जगह पे a plus n, a plus nh plus h by 2, a plus nh minus h by 2, इसको क्या हम कुछ कर नहीं सकते, तो sin of a plus nh plus h by 2 minus sin of a plus nh minus h by 2, ये ब्रैकेट बचेगा। ओके, कैसे आया समझ गए आप? ओके, और ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे वाला बड़ा लिखना है, सो व्हाट आई विल डू इज दैट दिस वन, हाँ तो प्लस डॉट डॉट प्लस sin of a plus nh plus h by 2 minus sin of a plus nh minus h by 2. Now सुनो और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। अब अगर आप ध्यान से देखो, अब अगर खाली पहले दो ब्रैकेट होते तो कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे? पहला तो कौन सा टर्म है ये और ये। अगर पहले तीन ब्रैकेट्स हैं तो कौन से कैंसिल हो जाएंगे? a plus 5h by 2 कैंसिल हो जाएगा, a plus 5h by 2 कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब अगर तीन ब्रैकेट्स हैं तो हमेशा कौन सा टर्म बचता है? पहले ब्रैकेट का सेकंड टर्म और लास्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म। तो गोइंग बाय दैट पैटर्न ऐसे जो कैंसिल हो रहे हैं उसमें डोंट थिंक sin of a plus 7h will be cancelled over here and sin of a plus nh minus h by 2 will be cancelled somewhere over here. So we will be left with यहाँ पे plus this will be cancelled somewhere over, इसके पहले वाला टर्म यहाँ पे कहीं पे होगा, इसके पहले तो बचा क्या? sin of a plus nh plus h by 2 माइनस sin of a plus h by 2 ही बचेगा। So इतना लंबा चौड़ा करने के बाद we are left with a simple sum limit h tends to 0 h upon 2 into sin of h by 2 into क्या बचा? sin of a plus nh plus h by 2 minus sin of a plus h by 2. ओके, अब a plus nh क्या था? a plus nh क्या था? b, तो लिख दो a plus nh is b, a plus nh is b। a plus nh को b क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे there is no need of n, यहाँ पे वेरिएबल h है and a plus h is equal to a plus n, तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट h tends to 0 h upon 2 times sin of h by 2 into sin of b plus h by 2 minus sin of a plus h by 2। लिमिट अप्लाई करने के लिए रेडी है ये पूरा फंक्शन, पर h tends to 0 when h tends to 0 h by 2 किसको टेंड करेगा? h tends to 0 h by 2 किसको टेंड करेगा? 0। और हमने लिमिट में एक फार्मूला दिया था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा कितना होता है? 1। सो वो चीज याद रखना कि when h tends to 0 h by 2 also tends to 0, तो क्या लिखेगा? as इस चीज को मैं लिखता हूं लिमिट h tends to 0, आई एम राइटिंग ये जो h by 2 है h upon 2 है उसको मैं लिख देता हूं h upon 2 whole upon sin of h upon 2 into sin of b plus h by 2 minus sin of a plus h by 2। ओके, लिमिट अप्लाई करने के लिए रेडी है। इसके
इसलिए मैंने बोला ये सम में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए ये सम आराम से आप करना। इन द एंड एज h टेंड्स टू 0, h/2 टेंड्स टू 0 एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin theta by theta is 1, as h tends to 0, h/2 tends to 0 and limit theta tends to 0 sin theta by theta। ये लिमिट कितनी होती है 1। तो लिमिट लगा दो। कौन से फॉर्म में थीटा अपॉन sin थीटा, तो इसका लिमिट कितना है 1/1। और sin और cos sin फंक्शन कंटीन्यूअस होता है तो उसमें कंटीन्यूअस फंक्शन की लिमिट कैसे मिलती है, उसके अंदर अप्रोचिंग नंबर सब्स्टिट्यूट कर देगा एंड लिमिट also and sin is continuous and sin is continuous function। ओके sin फंक्शन कंटीन्यूअस है तो इसका लिमिट कितना है sin थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 के फॉर्म में नहीं, ये है थीटा अपॉन sin थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, h/2 टेंड्स टू 0, तो इसका लिमिट 1/1। sin फंक्शन कंटीन्यूअस है तो इसका लिमिट कैसे मिलेगा, h की जगह पे 0 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देगा तो आंसर इज 1/1 1/1। इसका लिमिट आएगा 1/1 इनटू sin of 1/1 1/1 into sin of b plus h की जगह 0, 0/2 is 0 minus sin of a plus 0/2 is 0। So ultimately you end up getting 1 into sin b minus sin a, 1 into sin b minus sin a, 1 into sin b minus sin a, which is sin b minus sin a। So हमारे पास आंसर क्या आया, इंटीग्रेशन, therefore इंटीग्रेशन a to b cos x dx कितना आया sin b minus sin a fixed as limit of a sum। अगर एग्जाम में वो लोग इंटीग्रेशन a to b cos x dx as limit of a sum पूछते हैं, आपको इतना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। This is you can say a 4-mark question in Gujarat board or 5-mark and 6-mark question for NCERT CBSE schools। Okay, now ये तो हो गया क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर अगर उन्होंने पूछा इंटीग्रेशन, सपोज वो लोग पूछते हैं इंटीग्रेशन, दिस इज आल्सो आस्क्ड, सपोज द क्वेश्चन आस्क्ड इज ऑब्टेन इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x dx as limit of सपोज लास्ट क्वेश्चन बोलिए। अगर ये ऐसे पूछे तो आपको क्या करने का, ये मैंने डिराइव किया है a to b cos x dx as limit of a sum, मैंने जो डिराइव किया वो आपको पूरा डिराइव और फिर उस फाइनल आंसर में एक की जगह पे 0 और b की जगह पे लगा के रख के सॉल्व कर देने का जनरल टाइप प्लस इजी वे। सो सॉल्यूशन कैसा करने का, ऑब्टेन at limit of a sum as done before, obtain integration a to b cos x dx या as done before, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने हम किया हुआ है कि by limit of a sum हमने क्या ऑलरेडी प्रूव किया, वो obtain करने का इंटीग्रेशन a to b cos x dx कितना आएगा sin b minus sin a। ठीक है, तो लिखने का here for integration from 0 to comparing, तो रिजल्ट है सब्स्टिट्यूट कर देने का। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो comparing integration 0 to π/2 cos x dx with integration a to b cos x dx, a is 0, b is π/2, we get a is equal to 0, b is π/2, we get a is 0, b is π/2। ठीक है, अब सीधा आंसर लिखने का इंटीग्रेशन a to b cos x dx कितना था sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x और sin b माइनस sin a, मतलब डायरेक्टली नहीं लिखना है, ये हमको डिराइव करना पड़ेगा जो मैंने पिछले सम में आपको पूरा डेरिवेशन दिया। सो इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x dx will be sin π/2 minus sin 0 which is 1 minus 0 which is 1। इसका आंसर आएगा 1। हाँ, लिमिट ऑफ सम मतलब मैंने जनरल में a to b cos x dx आपको
सिखा दिया है इस लिमिट ऑफ सम, तो हमेशा वही करना है, इजी रहेगा। therefore इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 cos x dx कितना आएगा 1 as limit of a sum। so that's it for today, thank you। अब इंटीग्रेशन a to b sin x dx as a limit of a sum वो मैं बताऊंगा, और ऐसा उसका कोई स्पेशल केस वाला सम बताऊंगा, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के और 2-3 क्वेश्चंस में करूंगा, और फिर एक्सपोनेंशियल e raised to x, a raised to x, 2 raised to x, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ऐसे 2-3 क्वेश्चंस अगर होंगे पर्टिकुलरली एक्सपोनेंशियल, वो वाले में हम करेंगे लिमिट ऑफ सम, एंड देन दैट विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम नेक्स्ट वीक। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।